Hello everyone and welcome to the Brahmastra batch day 21. This is Sagar Thakkar and I welcome you to my channel Think Set the video. Before proceeding, please एक बार like जरूर कर देना and channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना. So from today we are going to do the two Brahmastra batches, that is day 21 to 25 है ना. November 21st to 25th तक हम लोग डेली दो ब्रह्मास्त्र बैच के क्लासेस करेंगे, right? So that we can cover up maximum to maximum sets possible. We'll be also covering the Venn diagram maxima minima concept, games and tournaments concept, right? And some unique concepts like scattered charts and spider charts I'll also try to cover. So please share the link of the video maximum to maximum, because this is going to be helpful for the CAT 2022 and CAT 23 aspirants. Till then, let's have a look at the first set for the day. Before moving forward, this is the offer going on right now in which you can get maximum 33% discount on your Unacademy subscription. Yes, I'm right. You're hearing it for the first time that 33% discount has been given from the Unacademy side, and you can avail it with the code Sagar60, right? You can avail it with the code Sagar60, and not only you get 30% discount by using the code, I give you all the books for free, right? मेरी जितनी की books हैं, सारी की सारी books you get it for free, or you can purchase it from the Flipkart and Amazon link in the description below. Yes, so Saga60 is the code. These are the prices after discounts and these are the prices before discount. 33% आप बचा रहे हैं अपना, right? This offer is valid till only 20th 3rd of September. So go and subscribe ASAP. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप अपने किसी फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं. रेफर करने पे भी मैं आपको सारी की सारी बुक्स फ्री में दे दूंगा. एंड अगर आप 22 दे रहे हो तो AIMT इज द मस्ट. अगर आपने अभी तक AIMT नहीं दिया है तो दीज आर द लास्ट टू AIMTs दैट हैपन. इनको जाके जरूर देखना, देना. एंड अगेन यूज द कोड सागर60, राइट? अगेन यूज द कोड सागर60, ठीक है? बिल्कुल मत भूलना. फाइन, ओके. So in an Italian restaurant there are three employees, PQR, and whoever is free works of the order available. Okay, there are two ordering counters, each with a person other than PQR only to take orders and to serve complete the orders. Okay, so there are two ordering counters and three employees who are making the pizza or the garlic bread or whatever the order is, and other two are taking the orders. The restaurant serves three dishes: pizza, garlic bread, and taco. There, which are the first prepared and then baked. Okay, पहले prepare करेंगे फिर bake करेंगे. An employee can work on a single quantity of dish at any dish at a time, and also when the dish is oven for baking, the employee is free and can take another dish to work on. Okay, एक टाइम पे एक ही डिश एम्प्लॉय प्रिपेयर करेगा, है ना? एम्प्लॉय एक टाइम पे एक डिश प्रिपेयर करेगा. अब जब वो फ्री है, मतलब हमने मान लो कि प्रिपेयर करके मैंने ओवन में डाल दिया बेक करने के लिए, देन आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन अदर डिश. ओके, द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन टाइम एंड द बेकिंग टाइम, है ना? सो सी, एक है प्रिपरेशन एंड दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? बेकिंग. तो जब प्रिपेयर कर रहा है तो प्रिपेयर में एक टाइम पे एक ही डिश प्रिपेयर कर सकता है, राइट? एक टाइम पे एक ही डिश प्रिपेयर कर सकता है. बट जब वो डिश बेक हो रही है तो वो एम्प्लॉय दूसरी किसी डिश पे काम कर सकता है. वो एम्प्लॉय दूसरी किसी डिश पे काम कर सकता है. आई विल क्लियर दिस. ओके, प्रिपरेशन टाइम फॉर द पिज्ज़ा इज 4 मिनट्स. दिस इज द बेकिंग टाइम. टोटल टाइम है ना, मतलब कि टोटल टाइम एक पिज़्ज़ा को बनने में इतना लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आके पिज़्ज़ा भैया ऑर्डर किया 10 बजे, तो उसका पिज़्ज़ा रेडी कब तक हो जाएगा? उसका पिज़्ज़ा रेडी कब तक हो जाएगा? 10-12 पे उसका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा. गार्लिक ब्रेड को रेडी होने लगता है 8 मिनट, टाको को लगता है 15 मिनट्स, ठीक है? देयर आर कस्टमर, दीज आर दी 6 कस्टमर्स, दे ऑर्डर एट दीज 2 काउंटर्स एंड दीज आर देयर ऑर्डर्स, है ना? ये उन्होंने ऑर्डर करा है और ये ऑर्डरिंग टाइम है. ये उन्होंने ऑर्डर करा है और ये ऑर्डरिंग टाइम है. आई विल क्लियर विद दिस. एज यू कैन सी कि टाइम का कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, राइट? जो सबसे पहले ऑर्डर आया होगा, सी 9:56 पे ऑर्डर आएगा, सबसे पहले बनना चालू होगा, है ना? जो ऑर्डर सबसे पहले आया वो सबसे पहले बनना चालू होगा. उतने तो क्लैरिटी सबके माइंड में है, ठीक है? नहीं, उतने क्लैरिटी सबके माइंड में है. यस, जो ऑर्डर सबसे पहले आया वो सबसे पहले बनना चालू होगा, उसमें तो कोई है नहीं, ठीक है? यस, ये तो हर रेस्टोरेंट की स्कीम होती है, राइट? चलो, द टेबल शोन अबव प्रोवाइड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्डर्स प्लेस्ड इन द 6 काउंट बाय द 6 कस्टमर्स इन पर्टिकुलर डे. ओके, इफ द रेस्टोरेंट रिक्वायर्स 2 डिशेस टू बी प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, देन
any employee start working on the one of the requires greater preparation time, ठीक है, requires 2 dishes to be prepared simultaneously, then any employee start working on the one of the requires greater preparation time. Okay, ठीक है. If an employee has orders available from the two different counters, then he will prefer working on the order that was placed first. Obvious बात है, जो सबसे पहले आया. The number of ovens is not limited. Ovens के नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. Ovens is not limited मतलब कि अनलिमिटेड है ना. There can be n number of ovens. ठीक है, there can be n number of ovens. Guys, this is a very very fantastic set. इस टाइप का एक सेट कैट में पूछा गया है ना. इस टाइप का एक सेट कैट में पूछा गया है, तो वो सेट मेरे चैनल पे अवेलेबल है. आप जाके देख सकते हो, PYQs की वीडियो में अवेलेबल, राइट है ना. वो सेट PYQs की वीडियो में अवेलेबल है, आप जाके उसको चेक भी कर सकते हो. ठीक है, यस और नो. चलो, तो कैन वी गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. अब सी डेटा तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ डेटा तो बनाने का है नहीं. लेट्स सी कि फर्स्ट गो फॉर द क्वेश्चन डायरेक्टली. क्या बोलना चाह रहा है? द ऑर्डर ऑफ C3 कस्टमर एट काउंटर ए विल बी सर्व्ड कंप्लीटली एट व्हाट टाइम, है ना. तो C3 का ऑर्डर किस टाइम पे सर्व हो जाएगा, राइट. C3 का जो ऑर्डर है वो किस टाइम सर्व हो जाएगा. चलो ये सुनो, ठीक है. ओके, तो चलो, कैन वी मेक अ टेबल, कैन वी मेक अ टेबल. चलो पहले जनरल टेबल बना लेते हैं, राइट. चलो, सो सी हमारे पास सी वी हैव 3 एम्प्लॉयज़. ये सो नो, वी हैव 3 एम्प्लॉयज़. तो लेट अस सी, मैं एक टेबल डालना भूल गया हूँ यहाँ पे. मुझे एक टेबल डालना चाहिए था, बट कोई बात नहीं. विल वर्क विद द रफ टेबल अवेलेबल. विल वर्क विद द रफ टेबल अवेलेबल. तो सी वी हैव 3 एम्प्लॉयज़. तो वी हैव 3 एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉय 1. ओके, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आ जाए. दिस इज एम्प्लॉय 1, दिस इज एम्प्लॉय 2, राइट, एंड एम्प्लॉय 3. yes or no, this is employee 1, 2 and 3, and we need subdivisions. okay, so we need a bit of subdivisions. तो हम लोग सब डिवाइड भी कर लेते हैं उसको, क्योंकि एम्प्लॉय का टाइम एंड डेटा हमको चाहिए, राइट है ना. तो सी वन वी नीड इज अ कि कितने टाइम पे वो ऑर्डर हुआ है और कौन काम कर रहा है, पी, है ना. टाइम एंड एम्प्लॉय क्यू, दिस इज टाइम एंड एम्प्लॉय आर. ठीक है कि नहीं, बताओ यस और नो. अब कितने ऑर्डर्स हमारे पास, सी वी हैव 6 डिफरेंट कस्टमर्स. टेल मी यस और नो. वी हैव 6 डिफरेंट कस्टमर्स. आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी. तो हम लोग 6 बना लेते हैं उसके अंदर, राइट. तो विल नीड 6 कॉलम्स. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सॉरी, मैं टेबल डालना भूल गया हूँ स्लाइड के अंदर, है ना. मैं टेबल डालना भूल गया हूँ. चलो, ओके. तो सी फर्स्ट ऑर्डर कितने पे आया है, फर्स्ट ऑर्डर कितने पे आया है, सबसे पहला ऑर्डर कितने पे आया है, 9:56. उसके बाद जो ऑर्डर आया वो 10:01 पे आया. उसके बाद सॉरी, उसके बाद का ऑर्डर आया है 10 बजे. तो सी फर्स्ट जो सबसे पहला ऑर्डर है वो आया है 9:56 पे. फिर जो ऑर्डर आया है वो 10 बजे आया है. फिर जो ऑर्डर आया है वो 10 बजे 1 मिनट पे आया है. फिर 10 बज के 3 मिनट्स पे आया है. आई विल क्लियर विद दिस, है ना. टेल मी यस और नो. फिर 10 बज के 1 मिनट पे आया है कि नहीं आया, बताओ. आया है ना. उसकी 9:56, 10 बज के 3 मिनट पे, 10 बज के 7 मिनट पे और 10 बज के 5 मिनट पे, ठीक है नहीं, 10 बज के 5 मिनट पे. आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? चलो लेट्स सी. तो चलो अभी तक हम लोग इसको ऐसा रखते हैं, लेट्स सी, डायरेक्ट बनाते हैं. विल सेव द टाइम, राइट, है ना. विल सेव द टाइम. फॉर एग्जाम्पल सी, ये जो 10:56 वाला ऑर्डर है वो पी ने ले लिया, ठीक है. कोई भी ले सकता है ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं. चलो, PQR तीनों में जो भी फ्री होगा वो ऑर्डर ले लेगा. तो सबसे पहला ऑर्डर जो आया है वो पी ने ले लिया, है ना. हमने मान लिया कि सबसे पहला जो ऑर्डर आया है वो पी ने ले लिया. अब सी ऑर्डर में क्या है, 2 टाकोज हैं, 2 टाकोज हैं, बट एक टाइम पे एक जना एक ही डिश बना सकता है. व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन कि भैया वो एक जो टाको है वो पी बनाएगा, एक टाको दूसरा कोई बनाएगा, है ना. एक जो टैकोज है वो पी बनाएगा, एक टाको दूसरा कोई बनाएगा. टेल मी यस और नो. अब टैको का प्रिपरेशन टाइम कितना है, 5 मिनट्स. टैको का प्रिपरेशन टाइम कितना है, 5 मिनट्स. अब सी, तो एक टैको जो है उसने बनाना चालू किया, है ना.
एक जो टैको है उसने बनाना चालू किया, है ना। तो टैको वो कब तक प्रिपेयर हो जाएगा? कौन से काउंटर पे ऑर्डर हुआ था? कस्टमर C4 का ऑर्डर, राइट। कस्टमर C4 का ऑर्डर है। तो कस्टमर C4 का जो ऑर्डर है 5 मिनट्स का प्रिपरेशन टाइम है ना। 5 मिनट का प्रिपरेशन टाइम है। अब सी दूसरा टाको कौन लेगा? दूसरे टाको का जो ऑर्डर होगा वो कौन लेगा? क्यू लेगा, है ना। ये सुन लो, वो भी एक टाको बनाएगा। वो भी एक टाको बनाएगा। कौन से कस्टमर का? C4 कस्टमर का 5 मिनट लेके। बोलो हाँ, है ना। 5 मिनट लेके। तो नाउ दिस ऑर्डर इज फिक्स्ड, राइट, है ना। टेल मी। तो अब C4 का ऑर्डर फिक्स हो गया। ये सुन लो, C4 का ऑर्डर फिक्स हो गया। अब उसके बाद कौन सा ऑर्डर आया है? कस्टमर 1 का ऑर्डर आया है ना। अब उसके बाद कौन सा ऑर्डर? ऐसे हमको काउंटर से कोई लेना नहीं, राइट। कौन से काउंटर से ऑर्डर हुआ है कौन सा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ कौन सा कस्टमर है उसका कितना टाइम है उससे फर्क पड़ता है। अब कस्टमर 1 का ऑर्डर आया है 10 बजे। तो एक ऑर्डर है पिज्ज़ा का, एक ऑर्डर है गार्लिक ब्रेड का। टेल मी यस और नो। एक ऑर्डर है पिज्ज़ा का, एक ऑर्डर है गार्लिक ब्रेड का। तो सी, अभी कौन फ्री है? पिज्ज़ा को प्रिपरेशन टाइम कितना है? 4 मिनट, है ना। तो सी, तो एक पिज्ज़ा का जो ऑर्डर है वो कौन ले लेगा? आर ले लेगा, बिकॉज आर इज इमीडिएटली फ्री। कौन से कस्टमर का है? वो C1 का। प्रिपरेशन टाइम कितना है? 4 मिनट। तो कितने बजे ऑर्डर एक्सेप्ट किया उसने? ऑर्डर उसने एक्सेप्ट किया 10 बजे एग्जैक्टली। अब सी, ऑर्डर इसने 10 बजे तो कर दिया, तो एक पिज्ज़ा बनाने के लिए आर वॉज अवेलेबल। बट दूसरी जो उसकी आइटम है कौन सी? गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड का टाइम कितना है? 3 मिनट। बट दूसरा कोई फ्री नहीं है। अब पी भैया जो है वो अपना ऑर्डर करके 5 मिनट में फ्री होंगे। तो 956 + 5, 956 + 5 मतलब कि पी भैया मेरे फ्री होंगे 10 बजे 1 मिनट पे। एंड देन ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दी अदर ऑर्डर, दैट इज गार्लिक ब्रेड। दैट इज गार्लिक ब्रेड। उसका टाइम कितना है? कस्टमर 1 का है, उसको टाइम लगेगा 4 मिनट, है ना। सी, जब तक एक ऑर्डर कोई प्रिपेयर कर रहा है तब तक वो दूसरा ऑर्डर प्रिपेयर नहीं कर सकता। तब तक वो दूसरा ऑर्डर प्रिपेयर नहीं कर सकता। मतलब इसके दोनों के दोनों ऑर्डर प्रिपेयर हो रहे हैं। मतलब इसके दोनों के दोनों ऑर्डर प्रिपेयर हो रहे हैं। टेल मी यस और नो। टेल मी यस और नो। आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी माइंड में? समझ आएगा नहीं आएगा? समझ आ गया नहीं आ गया? समझ आ गया, ठीक है। अब सी, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। टेल मी, चलो आगे। अब देखते हैं, इसका प्रिपरेशन में चल रहा है, इसका भी प्रिपरेशन में चल रहा है। अब नेक्स्ट ऑर्डर किसका है? 10 बज के 1 मिनट पे। किसका है? C5 का 2 पिज्ज़ा। C5 का 2 पिज़्ज़ा 10 बज के 1 मिनट पे। तो क्या ये 10 बज के 1 मिनट पे फ्री हो जाएगा? हाँ, बस फ्री हो जाएगा। तो एक पिज़्ज़ा गया इसके पास, है ना। एक पिज़्ज़ा गया इसके पास, C5 का ऑर्डर है। पिज़्ज़ा का प्रिपरेशन टाइम कितना है? पिज़्ज़ा का प्रिपरेशन टाइम कितना है? 4 मिनट, ठीक है। ऑर्डर कितने बजे एक्सेप्ट हुआ? ऑर्डर कितने बजे एक्सेप्ट हुआ? 10 बज के 1 मिनट पे। अब सी, इसने काम चालू किया था 10 बजे, 4 मिनट के लिए। ये फ्री होगा 10 बज के 4 मिनट पर, राइट। ही विल गेट फ्री बाय 10:04। तो दैट मीन्स कि दो पिज्ज़ा के जो ऑर्डर हैं, दो पिज्ज़ा में से दूसरा पिज्ज़ा कौन बनना चालू करेगा? आर, है ना। दूसरा पिज्ज़ा कौन बनना चालू करेगा? आर। कौन से कस्टमर का? कस्टमर C5 का। अगेन प्रिपरेशन टाइम इज 4 मिनट्स। अगेन प्रिपरेशन टाइम इज 4 मिनट्स, है ना। जब तक वो प्रिपेयर कर रहा है उसके पहले ऑर्डर नहीं बन पाएगा, है ना। सपोज करो कि आप डोमिनोज में पिज्ज़ा खाने गए हो, आपने ऑर्डर तो कर दिया, बट ऑलरेडी जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो दूसरे का ऑर्डर बनाने में लगे हुए हैं। तो जब तक वो एम्प्लॉय फ्री नहीं होता तब तक आपका ऑर्डर बनना चालू नहीं होगा, है ना। मान लो कि आपने 10 बजे ऑर्डर किया, बट वो एम्प्लॉय 10 बज के 5 मिनट पे फ्री हो रहा है, तो वो 10 बज के 5 मिनट आपका ऑर्डर बनाना चालू करेगा, राइट। उसके पहले वो चालू नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतना लोड है, राइट। वो पहले से किसी चीज़ पे काम कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो बेसिक्स है। आगे क्लियर होती समझ आया कि नहीं है? बताओ, ये बेसिक्स है। आगे क्लियर हो दिस, है ना। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक सेट, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक सेट, इसलिए मैंने लिया है इसको आज। ओके, चलो देखेंगे, ठीक है। तो अब C5 का ऑर्डर दोनों दोनों बनना चालू हो गया। उसके बाद किसने ऑर्डर किया? आके C2 ने ऑर्डर किया 10 बज के 3 मिनट पर, राइट। C2 ने ऑर्डर किया 10 बज के 3 मिनट पर कि भाई एक गार्लिक ब्रेड एक टाको। तो C2 ने ऑर्डर किया है 10 बज के 3 मिनट पे, है ना। अब ये सारे के सारे बिजी हैं। ये कितने बजे फ्री होगा? ये कितने बजे फ्री होगा? ये फ्री होगा 10 बज के 5 मिनट पे। ये भी फ्री होगा 10 बज के 5 मिनट पे। ये कितने बजे फ्री होगा? 4 मिनट और, मतलब कि ही विल गेट फ्री बाय 10 बज के 8 मिनट पे।
टेल मी यस और नो। 10:08 पे ये भैया मेरे फ्री हो जाएंगे, ठीक है नहीं, ये भैया मेरे फ्री हो जाएंगे। चलो आगे देखेंगे। तो सी किसने ऑर्डर किया, C2 ने ऑर्डर किया एक गार्लिक ब्रेड एक टाको। तो C2 ने ऑर्डर किया एक गार्लिक ब्रेड, इसके पास चला गया, एक टाको इसके पास चला गया, इसका C2 का। गार्लिक ब्रेड का प्रिपरेशन टाइम कितना है, गार्लिक ब्रेड का प्रिपरेशन टाइम कितना है, 3 मिनट। और टाको का प्रिपरेशन टाइम कितना है, 5 मिनट। टेल मी यस और नो। टाको का प्रिपरेशन टाइम कितना है, 5 मिनट। सो 3 मिनट मतलब कि अब ये जो नेक्स्ट फ्री होगा वो 10:08 पे होगा, और ये जो नेक्स्ट फ्री होगा वो 10:10 पे फ्री होगा। समझ आया कि नहीं आया बताओ। समझ आया, जितने बजे जो फ्री होगा उतने बजे ऑर्डर लेगा। टेल मी यस और नो। गार्लिक ब्रेड का प्रिपरेशन टाइम 3 मिनट है, टाको का प्रिपरेशन टाइम 5 मिनट है। समझ आया कि नहीं आया बताओ। यस, क्लैरिटी माइंड में। जो जितने बजे फ्री होगा उतने बजे ही ऑर्डर लेगा, उसके पहले ऑर्डर नहीं लेगा वो, है ना, उसके पहले वो ऑर्डर नहीं लेगा। ठीक है कि नहीं, टेल मी यस और नो। ठीक है कि नहीं। अब फिर थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मान लो कि मैंने इन दोनों को स्विच कर दूं आपस में, टाइम बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, ये 10:05 पे ये एक गार्लिक ब्रेड था, तो गार्लिक ब्रेड का प्रिपरेशन टाइम 3 मिनट है, राइट। सॉरी, गार्लिक ब्रेड का प्रिपरेशन टाइम 3 मिनट है। ओके हाँ, सी यहाँ पर एरर कराया हमने। गार्लिक ब्रेड का प्रिपरेशन टाइम 3 मिनट ही है, तो ये 10:04 पे फ्री हो जाएगा, राइट, है ना। सी, गार्लिक ब्रेड का प्रिपरेशन टाइम केवल 3 मिनट ही है, तो ये 10:04 पे फ्री हो जाएगा। अब सी, जो ये 10:04 पे फ्री हो रहा है, ये 10:05 पे फ्री हो रहा है, तो जो पहले फ्री हुआ वो ज़्यादा प्रिपरेशन वाला ले लेगा, बताओ। अगर ये एक टाको ले लिया इसने और गार्लिक ब्रेड इसको दे दिया, तो टाको जल्दी बन जाएगा ना। जो पहले फ्री हो जाएगा, मान लो कि इसने एक टाको ले लिया और एक इसको गार्लिक ब्रेड दे दिया, क्यों, क्योंकि गार्लिक ब्रेड का प्रिपरेशन टाइम कम है और टाको का ज़्यादा है। तो अगर टैको को मैंने पहले बनाना चालू कर दिया, जल्दी बन जाएगा, और ये भी जल्दी बन जाएगा। टेल मी यस और नो। तो 5 मिनट मतलब कि अब ये फ्री होगा 10:09 पे, है कि नहीं। अब ये फ्री होगा 10:09 पे, 3 मिनट मतलब कि अब ये फ्री हो जाएगा 10:08 पे। सी, तो वी सेव द टाइम। टेल मी यस और नो। वी सेव द टाइम। समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे टाइम बचाएंगे हम लोग, राइट, है ना, ऐसे हम लोग टाइम बचाएंगे। ठीक है, तो C2 का ऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट ऑर्डर किसका आया, C6 का आया 10:05 पे, है ना। C6 का आया एक पिज्ज़ा एक टाको एक गार्लिक ब्रेड। तो पिज्ज़ा टाको गार्लिक ब्रेड, सबसे पहले कौन फ्री है, 10:08 पे। तो सबसे पहला ऑर्डर कौन सा लेगा, सबसे पहला ऑर्डर वो कौन सा लेगा, टैको का लेगा, बिकॉज टैको टेक्स मोर टाइम, टैको टेक्स मोर टाइम, है ना। कितने मिनट का प्रिपरेशन टाइम है, कितने मिनट का प्रिपरेशन टाइम है, 5 मिनट का, है कि नहीं। अब इन दोनों में से पहले कौन फ्री हुआ है, इन दोनों में से पहले कौन फ्री हुआ है, आर सॉरी क्यू इज गेटिंग फ्री पहले, राइट, है ना, क्यू सबसे पहले फ्री हुआ है, तो क्यू बड़ा ऑर्डर ले लेगा, है ना। एक पिज्ज़ा ले लिया क्यू ने और एक गार्लिक ब्रेड दे दिया इसको, बिकॉज ये पहले फ्री हुआ है ना। कस्टमर C6 का जो ऑर्डर है, पिज्ज़ा का टाइम कितना है, 4 मिनट का, और गार्लिक ब्रेड का टाइम कितना है, C6 का 3 मिनट का। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। So now R is getting free at 10:13 p.m. Yes or no? He will be getting free at 10:12 and he will be getting free at 10:12. समझ आया कि नहीं आया बताओ, समझ आया कि नहीं आया। अब क्लियर विद दिस। अब लास्ट ऑर्डर जो बचा हुआ है, किसका बचा हुआ है, 3 पिज्ज़ा का। तो तीनों के तीनों पिज्ज़ा हैं, राइट, यस और नो, तीनों के तीनों पिज्ज़ा हैं। तो तीनों के तीनों पिज्ज़ा में से एक पिज़्ज़ा ये ले लेगा, एक पिज़्ज़ा ये ले लेगा, और एक पिज़्ज़ा ये ले लेगा। ठीक, मुझे टाइम क्वेश्चन करने में इसलिए लग रहा है बिकॉज मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। तो पिज़्ज़ा का प्रिपरेशन टाइम कितना है, कौन सा कस्टमर है ये, कौन सा कस्टमर है ये, कस्टमर C3 है। पिज़्ज़ा का प्रिपरेशन टाइम है 4 मिनट का, है ना, C3 का 4 मिनट और C3 का 4 मिनट। अब बाकी के सारे फ्री हैं, है ना, बाकी के सारे ऑर्डर्स हैं वो फ्री हैं, है ना। ये 10:17 पे फ्री हो जाएगा, ये 10:17 पे फ्री हो जाएगा, और ये भी 10:17 पे फ्री हो जाएगा, है ना। दिस इज द ब्लैंक एम्प्टी स्लॉट्स की जहाँ पे ये लोग फ्री हैं। बेक हो रहा है तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब सिर्फ प्रिपेयर करके डाल दिए, ओन में मतलब कि बेक हो रहा है।
टेल मी यस और नो, प्रिपेयर करके डाल दिया ओवन में, मतलब कि चीज़ें बेक हो रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, राइट, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमने जो टेबल बनाया वो किसका टेबल है? ये टेबल इज सोलली फॉर द प्रिपरेशन, राइट, है ना। ये टेबल इज सोलली फॉर द प्रिपरेशन टाइम, बेकिंग टाइम के लिए नहीं है। देयर आर टू टाइम्स, प्रिपरेशन टाइम एंड बेकिंग टाइम। अभी से प्रिपरेशन हो रहा है इतने टाइम में, ठीक है, ओके। द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर C3 एट अ काउंटर ए विल बी सर्व्ड कंप्लीटली एट व्हाट टाइम? तो C3 का जो ऑर्डर है वो कितने टाइम पे सर्व हो जाएगा? C3 का जो ऑर्डर है वो कितने टाइम पे सर्व हो जाएगा? तो C3 के जो ऑर्डर्स है वो कहाँ बनना चालू हुए हैं? C3 के ऑर्डर्स यहाँ बनना चालू हुए हैं, यहाँ बनना चालू हुए हैं, यहाँ बनना चालू हुए हैं। टेल मी यस और नो। तो सबसे लेट जो उसका ऑर्डर चालू हुआ है वो 10:13 पे चालू हुआ है, राइट, है ना। सबसे लेट जो उसका ऑर्डर चालू हुआ है वो 10:13 पे चालू हुआ है। और पिज्ज़ा है, तो पिज्ज़ा को टाइम कितना लग रहा है बताओ? पिज्ज़ा को टाइम कितना लग रहा है? 12 मिनट, टोटल 12 मिनट्स, ये सुन लो। तो 12 मिनट आप ऐड कर दीजिए, 12 मिनट आप ऐड कर दो। ये सुन लो कितना आ जाएगा? 10:25 मिनट, 10:25 मिनट, है ना। सी, ऑर्डर उसने कर दिया था, C3 ने ऑर्डर 10:07 पे ही कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि 10:07 में आप 12 मिनट्स ऐड कर दो तो सर 10 कितने पे, 10:19 पे उसका ऑर्डर रेडी हो जाएगा। नो, दिस इज इनकरेक्ट, है ना। ऑर्डर कर दिया बट चालू कितने बजे किया बंदा, वो भी तो मैटर करता है ना। चालू कितने बजे किया और वो भी तो मैटर करता है। तो 10:25 में उसके सारे के सारे पिज्ज़ा सर्व हो जाएंगे। अब मैंने 3 पिज्ज़ा का ऑर्डर दिया, 2 पहले बन गए बट एक बाद में बना, है ना, कि 2 ऑफ देम स्टार्टेड एट 10:12, तो दे विल बी मेड 1 मिनट अर्ली, राइट, है ना, दे विल बी रेडी 1 मिनट अर्ली। बट द थिंग इज दैट कि जब तक तीसरा रेडी नहीं होगा तब तक मैं सर्व नहीं कर पाऊंगा, है ना। कंप्लीट ऑर्डर कितने बजे सर्व होगा वो पूछा है, कंप्लीट ऑर्डर कितने बजे सर्व होगा वो पूछा है। आप एक क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो, क्लैरिटी है माइंड में? ओके, विल गो फॉर वन मोर, लेट्स सी कि क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। क्या बोल, इफ C6 at counter B saves serve my order items one by one and as soon as they are ready, तो जैसे जैसे रेडी होते गए वैसे वैसे देते जाओ। देन व्हाट विल बी द टाइम गैप इन मिनट्स बिटवीन द फर्स्ट डिश एंड द लास्ट डिश? तो C6 का जो ऑर्डर्स हैं उसके फर्स्ट डिश और लास्ट डिश का जो टाइम गैप है वो क्या होगा? चलो हम लोग देखते हैं कि C6 का ऑर्डर कहाँ कहाँ पे है। तो C6 के जो ऑर्डर्स हैं वो कहाँ हैं? C6 का एक ऑर्डर यहाँ है, C6 का एक ऑर्डर यहाँ है, C6 का एक ऑर्डर यहाँ पे है। ये 3 ऑर्डर्स हैं, ये 3 ऑर्डर्स हैं। चलो देखते हैं, है ना। तो C6 का एक ऑर्डर क्या है? टाको का एक ऑर्डर है, एक गार्लिक ब्रेड है और एक पिज्ज़ा है। अब टाको उसका बनना हुआ तो रेडी चला था 10:08 पे। टाको स्टार्टेड एट 10:08, पिज्ज़ा स्टार्टेड एट 10:08, सॉरी, गार्लिक ब्रेड स्टार्टेड एट कितने बजे? गार्लिक ब्रेड कितने बजे स्टार्ट हुआ है? 10:09 पे गार्लिक ब्रेड बनना चालू हुआ था, ठीक है। और पिज्ज़ा बनना चालू हुआ था 10:08 पे। अब टोटल टाइम ऐड कर दो, टोटल टाइम ऐड कर दो। पिज्ज़ा का टाइम है 12, गार्लिक ब्रेड का 8, टाको का 15। पिज्ज़ा का 12, गार्लिक ब्रेड का 8 और टाको का 15। So if we add 15 minutes, this will be 10:23. If we add 8 minutes, this will be 10:17. And if we add 12, this will be 10:20. So that means कि जो फर्स्ट डिश हो जाएगी 10:23 पे, yes or no? जो फर्स्ट डिश हो जाएगी गार्लिक ब्रेड दैट इज 10:17 पे, और जो लास्ट डिश है वो जाएगी 10:23 पे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है टाइम का? 6 मिनट्स का, राइट। दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है? 6 मिनट, यस और नो, है ना। तो एक एक करके देते गए, जब जब रेडी होती जाएगी तब तक देते जाएंगे, राइट। जब जब डिश रेडी है तब तब मैं देते जाऊंगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिश का जो डिफरेंस है वो 6 मिनट का आएगा। अब एक क्लियर विद दिस, फर्स्ट एंड लास्ट डिश का डिफरेंस जो 6 मिनट का आएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस क्या आप होमवर्क में ट्राई करोगे एंड कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे? यस, होमवर्क में ट्राई करोगे एंड कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे इसका, राइट। Are we clear with this? Are we clear with this? So that we can go for the one more set, right? है ना? So that we can go for the one more set, okay? Before moving forward, this is the offer going on right now, which you can get maximum 33% discount on your Unacademy subscription. Yes, I'm right. You're hearing it for the first time that 33% discount
has been given from the Unacademy side, and you can avail it with the code Sagar60, right? You can avail it with the code Sagar60, and not only you get 30% discount by using the code, I give you all the books for free, right? मेरी जितनी की बुक्स हैं, सारी की सारी बुक्स you get it for free, or you can purchase it from the Flipkart and Amazon, link in the description below. Yes, so Saga60 is the code. These are the prices after discounts and these are the prices before discount. 33% आप बचा रहे हैं अपना, right? This offer is valid till only 20th 3rd of September, so go and subscribe ASAP. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप अपने किसी फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं, रेफर करने पे भी मैं आपको सारी की सारी बुक्स फ्री में दे दूंगा। एंड अगर आप 22 दे रहे हो तो AIMT इज द मस्ट। अगर आपने अभी तक AIMT नहीं दिया है तो दीज आर द लास्ट 2 AIMTs दैट हैपन, इनको जाके जरूर देखना देना। एंड अगेन यूज द कोड Sagar60, राइट? अगेन यूज द कोड Sagar60, ठीक है? बिल्कुल मत भूलना। फाइन, चलो सो लेट्स हैव अ लुक कि आज का एक और फैंटास्टिक सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आज का एक और फैंटास्टिक सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है? देखो जरा क्या कहना चाह रहा है डेटा। पिछला सेट क्लियर है ना सबको? टोटली पिछला सेट को सबको क्लियर है, राइट? सी दीज काइंड ऑफ सेट्स आर वेरी ऑफन आस्क्ड इन द कैट एग्जामिनेशन। हम लोग जो भी लेवल यहाँ पे कर रहे हैं ना, वही लेवल कैट में आता है, राइट? जो भी लेवल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज द लेवल आस्क्ड इन द कैट एग्जामिनेशन, ठीक है? नथिंग डिफरेंट। अब कुछ डिफरेंट नहीं पूछते हैं। हाँ, सेट्स कैन बी डिफरेंट, yes or no, concept can be different, but yes, the level is going to be the same as we have done here. Clarity mind में, clarity mind में। चलो, can we go one more set? Okay, क्या बोला है? 7 people, this and this are the leaders of the marketing teams in the company, namely this and this in any order. Each of these leaders has a certain number of team members in their team. The number of team members in any team must be multiple of 5 and should be less than 50, है ना? So multiple of 5 and should be less than 50. So number of team members can be how many possible? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45. See, उसने बोल दिया less than 50, that is 50 not possible. How many teams are there? 7. So we have 9 numbers possible less than 50. So we need to pick any 7 out of them, है ना? क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेट है, फैंटास्टिक सेट है। चलो देखते हैं। टीम ऑफ ओब्रानिको कंपनी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ओब्रानिको हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अब क्लियर विद दिस? टेल मी यस और नो। तो पहले एक चीज फिक्स कर लेते हैं। लेट अस सी, उनका लीडर हमने फिक्स कर दिया, है ना? ABCDEFG। तो लीडर जो हैं वो ABCDEF and G, है ना? We took the initials of their names, है ना? We took the initials of their names. The team of the Ubranico has the maximum number of letters, है ना? तो Ubranico जो है, Ubranico के मैक्सिमम है ना, नंबर ऑफ members. Team of Afzal and Bashir have the number of members which are 2 consecutive multiples of 5 in any order, है ना? तो अफजल और बशीर के जो भी हैं वो 2 कंसेक्यूटिव होंगे, मतलब 5, 10, 15, 20, 20, 25, एनीथिंग इन एनी ऑर्डर। कौन लेस है कौन ज़्यादा वो हमें नहीं पता। द सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर फैजल एंड गयल, है ना? द सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर एफ एंड जी, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव होंगे, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव होंगे। आर वी क्लियर विद दिस? ओके। ओनली 3 teams have the number of members that is an even multiple of 5. तो even multiple of 5 में 3 ही ले सकता हूँ। तो even multiple of 5 कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, है ना? तो दैट मीन्स कि इन 4 में से मुझे एक एलिमिनेट करना है ना? तो आउट ऑफ 10, 20, 30 and 40 I need to take any 3. I can take only 3 of them. Any 3 of them is only possible, है ना? Any 3 of them is only possible. Only 3 teams have the number of members that is an even multiple of 5. So 10, 20, 30 and 40. Are we clear with this? Are we clear with this? है ना? तो इन तीनों में से कोई 4 ही पॉसिबल हैं, ठीक है? एक कोई उड़ जाएगा। अफजल हु इज़ फ्रॉम
Firon has 10 members in a team. अफजल who is from Firon has a 10 members in team. तो 10 members तो हैं, है ना? तो अफजल कौन सी टीम से है? Firon से है, राइट? My pronunciation can, है ना? अफजल who is from Firon has 10 members in a team. तो see, अगर इसके पास 10 members हैं, so that means the number of members with B can be either 5 or either 15 because they both are consecutive, है ना? Because they both are consecutive. आप clear with this? अब Firon चला गया C यहाँ पे. Okay. Sum of the number of members on Ubranico and Tesla is equal to the twice the number of Qatar, right? है ना? तो Ubranico and Tesla is twice the number of जो भी है ना, Qatar, right? Divana has the lowest number of team members. So see, lowest number of team members is 5. So that means the number of members with Divana is 5. Are we clear with this? Divana has the lowest number of members, that is 5. So that means कि B will be having 15 members. That means B will be having 15 members. Are we clear with this? है ना? Bashir will be having 15 members. Clarity mind में? ठीक है. For only 3 teams, the number of members are the prime multiples of 5, and also these are the consecutive prime multiples of 5. So prime multiples of 5. तो प्राइम मल्टीपल्स ऑफ 5, तो प्राइम मल्टीपल्स वो भी 3 कंसेक्यूटिव होने चाहिए, है ना? सी प्राइम मल्टीपल्स ऑफ 5 मुझे कौन कौन दिख रहा है ना? 5 2 is 10 is the prime multiple, 3 is the prime multiple, into 2 is there, into 3 is there, 10 into 5 is there, into 7 is there, okay 9 बस तो है ना? तो that means कि 5 15 20 and 7 एंड 35, इनमें से भी कोई भी 3 ही आएंगे, इनमें से कोई भी 3 ही आएंगे. अब इनमें से कोई भी 3, नाउ वी कैन सी कि 5 इज ऑल देयर, 5 इज देयर, टेल मी यस और नो. 5 5 जा 25 होगा, राइट? सॉरी 20 थोड़ी होगा, यस 5 5 जा 25. टेल मी. नाउ वी कैन सी कि 5 is already there, 15 is already there. So 5 is there, 15 is there, that means 25 has to be there because these 3 prime multiples are the consecutive prime multiples. So 5 15 and 25, है ना? 5 15 and 25, that means we will not have 35 in our list, right? That means we will not have 35 in our list. 35 हट जाएगा. आप एक clear with this point, है ना? 35 कहीं पे भी नहीं आएगा, राइट? किसी के भी टीम मेंबर्स 35 नहीं होंगे. चलो देखते हैं. यस, ओके. The sum of team members of Afzal and Bashir is equal to the number of team members of Sentinel, है ना? तो Sentinel, ओके. अफजल एंड बशीर की जो टीम मेंबर्स हैं, अफजल एंड बशीर का जो टीम मेंबर्स हैं, वो कंपनी सेंटिनल के बराबर होगा. तो दैट मीन्स कि दिस इज 10 एंड दिस इज 15. दैट मीन्स कि सेंटिनल का जो टीम मेंबर होगा उसमें 25 मेंबर्स होंगे ना. सेंटिनल विल बी हैविंग 25, मतलब इनमें से जहाँ पे भी सेंटिनल आएगा उसमें 25 मेंबर्स होंगे. सेंटिनल इज हैविंग 25 टीम मेंबर्स. ओके ओके. द टीम्स ऑफ ईशान हु इज फ्रॉम कतार, द टीम्स ऑफ ईशान हु इज फ्रॉम कतार, ठीक है, as number of members which is equal to the sum of members of Chaman's team and the team from Romboxy, है ना? तो Chaman's team and team from Romboxy, चलो ठीक है, तो इसको हटा देते हैं. टीम फ्रॉम Romboxy, that means कि Sentinel is having 25 members. ओके. अब जो ईशान की टीम है वो चमन एंड Romboxy का सम है ना? ईशान की जो टीम है, ओके, एज द नंबर ऑफ मेंबर्स इट इज इक्वल टू सम ऑफ मेंबर्स ऑफ चमन टीम एंड Romboxy. चमन की टीम और Romboxy का सम है, राइट? चमन और Romboxy का सम है, ठीक है. तो चमन और Romboxy का सम है. फाइन, ओके ओके. तो सी नाउ हमारे पास कौन कौन है? 5 10 15 20 25 30, 35 नहीं है, 40 एंड 45. ओके. So 5 we have already taken, 10 we have already taken, 15 we have already taken.
ये सो नो 25 कहीं ना कहीं आएगा, है कि नहीं? 25 कहीं ना कहीं आएगा। ओके, तो 1 2 3 4, 4 में से 25 कहीं ना कहीं आएगा, तो मतलब कि बचे हुए 4 में से एक उड़ जाएगा, बचे हुए 4 में से एक उड़ जाएगा। दैट इज क्लैरिटी। यस और नो? सी, हमको पता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सी, हमको पता है कि इन तीन में से मुझे कोई दो लेने हैं, इन तीन में से 20 30 40 में से मुझे कोई दो लेने हैं, तो 20 30 एंड 40 में से कोई दो आएंगे, है ना? मतलब कि इन तीन में से एक उड़ेगा, तो दैट मीन्स 45 इज कंपल्सरीली देयर, राइट? 45 इज कंपल्सरीली देयर, मतलब कि 20 30 40 में से कोई भी एक गायब होगा, वो हमको पता है। 20 30 40 में से कोई भी एक गायब होगा, हमको पता है। बोलो ये सुनो। अब सी, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती हुई कौन सी पॉसिबिलिटी है वो देखो, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती हुई कौन सी पॉसिबिलिटी है। अब सी, उब्रानिको प्लस टेस्ला इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कतार, तो ट्वाइस ऑफ कतार मीन्स ट्वाइस ऑफ ईशान, राइट? ट्वाइस ऑफ कतार मीन्स ट्वाइस ऑफ ईशान। बस सॉल्व करना है सी, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल गया। तो सी, ईशान कैन बी इक्वल टू हाउ मच, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी यहाँ पे? सी, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? अब थोड़ा दिमाग लगाओ। सी, ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं, ये दोनों कंसेक्यूटिव लेने हैं हमको, ये दोनों को मुझे कंसेक्यूटिव लेना है, एफ और जी को मुझे कंसेक्यूटिव लेना है। ओके, तो एफ और जी को कंसेक्यूटिव क्या पॉसिबल है? 20 25 इज पॉसिबल, 25 30 इज पॉसिबल। तो सी, दोनों कंसेक्यूटिव मतलब क्या पॉसिबल है? इधर 20 25 आएंगे दोनों के दोनों, या 25 30 आएंगे दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों 40 45 आएंगे, है ना? 30 40 तो नॉट पॉसिबल, 30 40 तो नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है। ओके, तो ईशान इक्वल टू सी प्लस दिस, तो ईशान इक्वल टू सी प्लस दिस क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? सी प्लस रोम्बॉक्सी, सी प्लस रोम्बॉक्सी, सी प्लस रोम्बॉक्सी। तो ईशान इक्वल्स टू सी प्लस रोम्बॉक्सी, मुझे क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं? जस्ट लेट अस लुक एट द पॉसिबिलिटी। ईशान को मैं क्या क्या दे सकता, क्या क्या दे सकता हूँ? ही कुड बी 20 25 30 40 और 45, कुछ भी हो सकता है, राइट ना? कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने ईशान को फॉर एग्जांपल 20 की तो दो सम पॉसिबल नहीं है, 20 इक्वल्स टू हाउ मच, 15 प्लस 5, चमन के पास 5 तो हो नहीं सकता, तो 20 इज नॉट पॉसिबल, राइट? 20 इज वॉट, 15 प्लस 5, बट चमन के पास 5 तो हो नहीं सकता, रोम्बॉक्सी के पास भी 5, दोनों में से एक के पास 5 15 तो नहीं है, तो दैट मीन्स 20 इज गॉन। कैन इट बी 25? 25 इज नथिंग बट, 25 इज नथिंग बट, दोनों में से मुझे किसी एक को 10 देना पड़ेगा, एक को 15 देना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, बिकॉज 10 ऑलरेडी फायरन के पास है, राइट? 10 ऑलरेडी फायरन के पास है, तो 25 इज ऑल्सो गॉन, राइट? 25 इज ऑल्सो गॉन, ये पॉसिबिलिटी गई। 30 को देखें, 30 को देखें, 30 कैन बी हाउ मच? 30 कैन बी 15 15, दो बार तो है नहीं, 15 15 दो बार तो है नहीं, तो इट कुड बी इधर 20 प्लस 10 इन एनी ऑर्डर, और इधर इट कुड बी 25 प्लस 5 इन एनी ऑर्डर। अगेन 10 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 हमारे पास ए के पास है ना? 10 इज विद द ए, तो 10 इज नॉट पॉसिबल, तो 10 वाली पॉसिबिलिटी हटाओ, 10 वाली पॉसिबिलिटी हटाओ, दिस इज द आंसर, राइट? एंड सी 30 इक्वल 25 प्लस 5, दिस इज द पॉसिबिलिटी। चलो बाकी को हटा दो। अगर ये 30 नहीं बैठा तो ही बाकी का देखने में टाइम बिताएंगे, राइट? तो ही बाकी का देखने में टाइम बिताएंगे, बट 30 बैठ गया तो मोस्ट प्रोबेबली यही बैठेगा, राइट? मोस्ट प्रोबेबली यही बैठेगा। अब 30 इक्वल टू 25 प्लस 5, तो सी 25 तो ऑलरेडी एक के पास है, मतलब 5 चमन के पास जाएगा नहीं, है ना? 5 ऑलरेडी एक के पास, मतलब 5 चमन के पास जाएगा नहीं, तो वी कैन टेक रिस्क कि भाई इसको मैंने रोम्बॉक्सी दिया, चमन को मैंने 25 दिया, so now 25 is also there and 30 is also there, 45 is already there, है ना? सी, yes or no? 30 is there। अब सी, अब मुझे इन दोनों को प्राइम देना है, सॉरी कंसेक्यूटिव देना है, तो 25 इज गॉन, राइट? 25 वाली कंसेक्यूटिव देने वाली पॉसिबिलिटी गई है, तो दैट लीव्स मी दी ओनली पॉसिबिलिटी फॉर देम इज 40 45, 40 45, तो 40 इज ऑल्सो कमिंग, दैट मीन्स हु इज नॉट कमिंग, 20 इज नॉट कमिंग, है ना? इन तीनों में से मुझे एक को एलिमिनेट करना था, बिकॉज मैं तीन ही प्राइम ले सकता हूँ, है ना? तो सी, मैंने 30 को लिया एंड 40 को लिया, आई नीड टू एलिमिनेट 20, तो 20 इज एलिमिनेटेड, मतलब कि हमने सही बनाया। अब इसके अलावा मेरे पास कोई डेटा नहीं है,
इसके अलावा मेरे पास कोई डेटा नहीं है, राइट, है ना। दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन, कि 40 या 45 दोनों में से एक यहाँ पे जाएगा, 45 या 40 दूसरा यहाँ पे जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, है ना। अब मुझे पता है कि उब्रानिको हैज़ दी मैक्सिमम कैपेसिटी, दैट मीन्स कि अगर 45 यहाँ पे तो उब्रानिको यहाँ पे होगा, एंड अगर 45 यहाँ पे तो उब्रानिको कंपनी यहाँ पे होगी। आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी यस और नो। आर वी क्लियर विद दिस? अब सी, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करो एक बार, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ट्वाइस ऑफ ईशान, दैट मीन्स कि ये 30 होगा, है ना। तो 60, क्या इन दोनों का सम 60 पॉसिबल है? ऐसे दो नंबर जिनका सम 60 पॉसिबल हो, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 60 पॉसिबल है, दिस इज 45, उब्रानिको इज 45, दैट इज श्योर। तो 45 प्लस 15, क्या मैं टेस्ला दे सकता हूँ 15 में? बिल्कुल दे सकता हूँ। सी मतलब हमने सही बैठाया, राइट, मैं टेस्ला दे सकता हूँ 15। टेल मी यस और नो। ओके, अब 25 किसके पास है? सेंटिनल के पास है 25, है ना। 25 ऑलरेडी सेंटिनल के पास है, राइट, यस और नो, मतलब हमने सही बनाया। सी 25 में यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा था, वो तो नहीं पॉसिबल था, बिकॉज 25 ऑलरेडी सेंटिनल के पास है सेंटिनल के पास। देन विच कंपनी इज लेफ्ट नाउ? देन विच कंपनी इज लेफ्ट नाउ? कौन सी कंपनी बच गई? वर्टिको बच गई, राइट, है ना, वर्टिको बच गई। दैट मीन्स दिस इज वर्टिको एंड दिस इज वर्टिको, सारे सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड, दिस सेटिस्फाइड, दिस सेटिस्फाइड, दिस सेटिस्फाइड, मतलब डेटा सही बनाया हमने, मतलब हमने डेटा सही बनाया है। आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी यस और नो। क्लैरिटी माइंड में? क्लैरिटी माइंड में? हेलो हेलो, आर वी क्लियर विद दिस? डेटा सही बनाया है ना। जो भी लेट आया है गाइस, प्लीज़ इसको रिवाइंड करके देख लेना क्लास को, है ना, प्लीज़ सेट को रिवाइंड करके देख लेना। क्लैरिटी माइंड में? क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी टीम लीडर्स वी कैन एग्जैक्टली डिटरमाइन द कंपनी फॉर द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन देयर टीम। अब सी, कितने लोगों की एग्जैक्ट कंपनी लोग डिटरमाइन कर पा रहे हैं? कितने लोगों को हम लोग एग्जैक्ट कंपनी डिटरमाइन कर रहे हैं? आउट ऑफ 7 वी आर एबल टू डिटरमाइन फॉर 5, राइट, आउट ऑफ 7 वी आर एबल टू डिटरमाइन इट फॉर 5। आर वी क्लियर विद दिस? इन पांचों की हमको नंबर ऑफ कंपनी मेंबर्स भी पता है एंड कंपनी भी पता है। इफ घायल हैज मैक्सिमम टीम मेंबर्स, देन व्हाट इज द सम ऑफ मेंबर्स इन फैजल, कतार एंड सेंटिनल्स टीम्स? इफ घायल हैज द मैक्सिमम टीम मेंबर्स, तो घायल हैज मैक्सिमम टीम मेंबर्स, दैट मीन्स कि यहाँ पे 45 होगा एंड यहाँ पे 40 होगा ना, यहाँ पे 45 होगा एंड यहाँ पे 40 होगा। चलो तो लेट्स सी कि अब क्या पॉसिबल है। किसका किसका सम बोला है उसने? इसका सम बोला है फैजल, कतार एंड सेंटिनल। सेंटिनल इज 25, सेंटिनल इज 25, वो उनको पता है। फैजल इज 40, फैजल इज 40 एंड कुतार इज हाउ मच? 30, एंड कतार इज हाउ मच? 30, 40 30 70 एंड 20, दैट मीन्स 95 इज द सम, राइट, दैट मीन्स 95 सम। एक बार आपने डेटा बना लिया एक बार आपने, फिर सेट इज सुपर इजी। डेटा बना लिया उसके बाद सेट इज सुपर इजी। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, तो क्या इसका आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, मुझे आंसर बताओगे कमेंट करके, है ना। क्या इसको आप होमवर्क में ट्राई करोगे, मुझे बताओगे आंसर कमेंट करके? बिल्कुल बताना, राइट। एक और है ये, कमेंट करके आंसर बताना है, राइट, कमेंट करके आंसर बताना है। अब सी एग्जाम में ऐसा होगा आपके साथ कि आपने बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया है, आपको दिख रहा है कि दो पहले दो क्वेश्चन इजी थे, आपके दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो आप इसको साइड में रख सकते हो, है ना। आप उन दोनों क्वेश्चंस को साइड में रख सकते हो कि भाई बाद में सॉल्व करेंगे, कि टाइम बचेगा, बिकॉज दो क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी सेट सॉल्व कर चुके हो और आपको लगता है कि आपका डेटा करेक्ट बना है पूरी तरीके से, है ना। ये दो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, तुम सॉल्व कर लीजिए इनको, है ना, सॉल्व कर लीजिए। मतलब कि एक सेट, मतलब कि 4 3 12 मार्क्स आपके कंफर्म है, राइट, डुएबल सेट है। और ऐसा नहीं है कि इजी लेवल का सेट है, ऐसा नहीं है कि इजी लेवल का सेट, राइट, इसलिए डुएबल है नहीं, सेट का लेवल अच्छा है। ओके, आप क्लियर विद दिस? सेट का लेवल अच्छा है बिल्कुल तरीके से, राइट।